Good morning everyone. Welcome to Quantifiers and let us have another engaging session on reading comprehension. Now today's topic that we are going to be following in the RC is something that is always been some sort of a bone of contention, and it is a topic that is known majorly to all of us. Let us start the session. Now before we proceed, I would just give you some time to go through the passage so that we can develop some ideas and understand what the author is majorly talking about. All right. Now, this particular topic is somewhat coming from the field of corporate. You can say that it is coming somewhere from the field of legalities. It is basically a mix of a lot of things. Let us go through the passage once in order to understand what the author is talking about. And as always, we are going to develop a line of thread whereby we understand and we try to engage the loops, ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि हर एक पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या बोलता है. Can India be in the same league as Sweden and Norway? And that too on an issue relating to women? Yes. According to the proposed Companies Amendment Bill 2003, any public company with paid up capital and free reserves of rupees 5 crore or more will be required to have a certain number of women directors on board. The exact number has not been prescribed. Now, first, there is some sort of a rhetorical question that has been answered, and yes has been given to that particular question. And this was a very important point, that the exact number of women who are going to be there as a part of the directors on board, that number has not been prescribed. Then he is giving an answer for that by giving us a semicolon. Perhaps that's because of our lawmakers are no more serious about this than they are about the bill reserving seats in the parliament for women. So basically from these three lines, what do we understand? We have been or we can just understand that we are talking about the priorities of the lawmakers. Their priority is to have a bill whereby they are trying to reserve seats for women in parliament. And they are not much interested as to what is going to be the exact number of women who are going to be there on board. That is not a matter of concern for them. That may also explain why this clause alone has been left vague. Unlike the stipulation regarding the independent directors or the age of directors, for instance, where there is no ambiguity. Now, if you read through these 3-4 lines, so let us say that I am a lawmaker. I have said that there are going to be certain number of women on board. But I am not certain number, तो कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. मैंने कोई नंबर आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया. लेकिन हाँ, मैंने नंबर कहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, जहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कितने सालों का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना एज बार उनका होना चाहिए. लेकिन कितनी विमेन होंगी ऑन बोर्ड, उसका कोई भी मेंशन कहीं पे भी नहीं किया गया. विच इज़ ऑफ कोर्स समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी disturbing as a pattern to understand. Now, when you talk about the term vague or the word vague, vague means something that is not clear, something that is unclear. तो कितने नंबर होंगे वो आपने उस पर क्लैरिटी नहीं दिया है, लेकिन क्या एज होनी चाहिए, कितने आपने उसका क्वालिफिकेशन है, क्या है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है. But in case our MPs do mean business after all, reserving seats for women on company boards does not hurt their interest directly, unlike reservation of seats in parliament. Then India, a country with one of the worst records of women's right abuse. Now ये tone है. अब अगर आप word देखो worst, it is not a negative word. It is far beyond being a negative word. It is that the author is using a terminology which is highly caustic, which is highly bitter. Records of women's rights abuse will join Sweden and Norway as the only other country to mandate the presence of women in the corporate boardrooms. Indeed, we would have gone one step further. Currently, the appointment of women directors is not a legal requirement in either of these two countries. Companies have simply been told that women directors must constitute a specified percentage of their board within a stipulated time frame, failing which the government will bring legislation to this effect. So if you see, what are we trying to do in the first paragraph? We are trying to draw a parallel between India and countries like Sweden and Norway.
which have a very strong provision, and they've given a very strong message to the boards and to the companies to have directors on board, right? They have given a certain percentage as to what is going to be the percentage of women who are going to be there on board as women directors. But in India, it has been all left vague. It is unclear as to what are going to be the numbers, how many women are going to be there. Numbers have only been provided as far as the age is concerned, nothing beyond that, right? So last two lines were very important. अगर हम इसको नॉर्वे एंड स्वीडन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें हमारे को क्या बोला है कि कंपनीज को डायरेक्टली बोला गया है कि आप एक स्टिपुलेटेड परसेंटेज ऑफ विमेन को रखेंगे, अगर आप वो नहीं करेंगे तो लेजिस्लेशन जो है अपना काम करेगा. लेकिन इंडिया में अभी तक इतनी एफर्मेटिवली इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कोई भी डिसीजंस जो है वो लिए नहीं गए हैं. नाउ women's organizations in India may be tempted to regard the new bill as a major victory. अब यहाँ पे पैराडॉक्स देखो, ऊपर जो हमने टोन का इस्तेमाल किया वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो बिल है ये सिर्फ नाम का है, राइट? एंड दूसरे पैराग्राफ में हम क्या बोल रहे हैं कि जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है they may be tempted to regard the new bill as a major victory. From a scenario where women directors are almost an oddity, एक आधा ही होगा कोई, except where they come from promoter families, female directors will become the rule rather than the exception once the amendment is passed. Now they've made a very important point कि अगर आप women directors की बात करो, so it is very rare कि कोई women director होगी unless उसकी फैमिली जो है और देर आर जनरेशन्स ऑफ बिजनेस और देर आर जनरेशन्स दैट आर रनिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस एंड वहाँ पे दे हैव सिलेक्टेड द विमेन एज बीइंग अ डायरेक्टर, बट अदरवाइज चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है. एंड देन ही मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लेम. ही सेज दैट दिस पर्टिकुलर thing, if the amendment is passed, it is going to become a thumb rule that women have to be appointed as a director. We may even catch up with countries like the US, where according to Catalyst, a non-profit organization devoted the advancement of women in business, 87% of companies in top 500 have at least one woman director and 12.4% of all directors are female. But there will be one major difference. So what are we talking about here in this particular paragraph? That should India take this whole thing very seriously, then there is a very strong possibility that we may compete with nations like US, जहाँ पे हम अपना प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि किस तरह से इंडियन कंपनीज में भी आपके बोर्ड रूम में डायरेक्टर्स जो हैं वो विमेन हो सकती हैं, जस्ट लाइक द केस द डेटा एंड द स्टैटिस्टिक्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. अब जब आपको इतना डेटा दे रखा होता है तो आपको सिर्फ डेटा में जो है इनगल्फ नहीं होना है, आपको उस चीज़ में इतना ज़्यादा एंगेज नहीं होना है कि आप रेस्ट ऑफ द पैसेज को पढ़ने में ध्यान ना दें, बिकॉज डेटा इज समथिंग दैट यू कैन ऑब्वियसली, दीज आर फिगर्स, दे आर नंबर्स, सो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द फिगर्स एंड द नंबर्स इन ऑर्डर टू गेट मोर क्लैरिटी. Unlike in the West, where women win their place on board table not by virtue of their gender, but because shareholders think they can contribute to the functioning of the company, in India, women directors will come to represent the same kind of, look at the word, tokenism that symbolizes most of government's efforts to ensure gender equality. Now West में आपका ये क्या बोल रहा है? He is again making a very important claim. He says West में when women are hired in a company or when they come as a part of the director or as a part of the board or having a position like a director, she is not coming there just because she is a woman. She is coming there because people think that she is capable enough to deserve that particular seat. But in India, if you feel कि आपको लगता है कि women directors जो हैं, ये अभी हुआ नहीं है, वो बोल रहा है विल, इफ दे कम टू रिप्रेजेंट, तो वो सिर्फ एक टोकन होगा. किस चीज़ का टोकन होगा? कि हाँ भाई देखो, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोई एफर्ट लगाया है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए. एंड क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी को एज अ गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं, आप ये देखिए कि हमने एक वुमेन डायरेक्टर जो है चूज़ की है, राइट? तो वो क्या है? यू आर नॉट चूजिंग दैट वुमन मेयर बाय द फैक्ट दैट शी इज केपेबल इनफ टू बी द डायरेक्टर, बट जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करेंगे टू हैव विमेन ऑन बोर्ड. तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि ये सारी चीज़ें, टोकनिज्म का मतलब क्या है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ मेयर फॉर्मेलिटी.
It is not going to be something that you are placing a woman because of her capabilities. Why? अगर इसका अब हम thread देखें, so there are questions that are being asked, there are a couple of answers that are being given, right? अब ये ऐसा क्यों है? Partly because we genuinely don't have enough CEO level women who could be appointed directors, and partly because ingenious ways will be found to circumvent the law thanks to a combination of poor law enforcement and the absence of shareholder activism. Now why is it कि हम सिर्फ एक जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, उसकी एक फॉर्मेलिटी को दिखाने के लिए हमने ये बोल दिया कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उसमें एक वुमन भी है? पहली चीज़ इसीलिए कि एक्चुअली में वी डोंट हैव उस लेवल का, CEO लेवल की विमेन जो है हमारी वर्कफोर्स में इतनी नहीं है कि वो रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है ना, इफ़ यू लुक एट टू वर्ड्स, एक वर्ड तो है आपका जिसको हम बोलते हैं इंजीनियस, और दूसरा वर्ड हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं इंजेन्युअस। दोनों का स्पेलिंग लगभग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे आई आपका लगा हुआ है। इसको अगर मैं निमोनिक बना के सोचूं तो इसमें से अगर मैं वर्ड जीनियस निकालती हूँ तो जीनियस कौन होता है? समवन हु इज़ वेरी क्लेवर, हु इज़ वेरी शार्प, राइट, वेरी क्विक विटेड काइंड ऑफ अ पर्सन। तो इंजीनियस का मतलब क्या होगा? जो इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर है। इंजेन्युअस, द वन विदाउट एन आई, क्योंकि इसमें जीनियस वर्ड हमारा निमोनिक नहीं बन रहा है, तो इंजेन्युअस का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज़ वेरी नाइव, वेरी सिंपल, पर्सन हु इज़ वेरी आर्टलेस, जिसको चालाकी नहीं आती, बहुत सिंपल नाइव इंसान। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? दूसरा तरीका हमारा क्या है कि इंजीनियस वेज हैं, देयर आर क्लेवर वेज इन विच वी विल फाइंड वेज टू सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है? तोड़ निकालना किसी भी चीज़ का, टू गेट अराउंड द लॉ, टू डॉज द लॉ, टू फ्लाउट द नॉर्म्स, थैंक्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर लॉ एनफोर्समेंट एंड एब्सेंस ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि विमेन क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही हैं अपने प्रॉपर वर्क फोर्स को इन अ बोर्ड रूम? क्योंकि फर्स्टली कोई इतने स्ट्रॉन्ग लॉज ही नहीं है जहाँ पे ये चीज़ बोला जाए दैट वुमेन शुड कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। एंड दूसरी बात, शेयर होल्डर एक्टिविज्म है ही नहीं। नोबडी वॉन्ट्स टू मेक देम अ पार्ट ऑफ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ sharing of responsibility at the top-notch level of hierarchy in the companies. Consequently, even if the proposed amendment is passed, in all probability, we will simply see a host of corporate Rabdi Devis joining company boards. Now, he is trying to make such an important claim कि अगर ये amendment pass हो जाता है तो board room में भी कैसी analogy क्यों ऐसी draw की गई है? ये बोलने के लिए analogy draw की गई है that the face is going to be somewhere else, the mind is going to be of someone else, right? तो यानी कि जो सामने होगा वो हर एक चीज़ को रन नहीं करेगा, उसके पीछे there are going to be people who are going to use that particular candidate only as a puppet. That was the most important point कि अगर ये पास हो जाता है सिर्फ parity दिखाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए that women are going to constitute a workforce, they are going to be made to be a part of the boardroom, but they would not have actual powers, they are just going to be sitting there symbolically, or the other case could be they would not be very efficient and they would be just placed there because they want to pass a particular mandate of having women on board. In any case, the moment women's reservation is treated as a matter of dogma, अब आप language देखो कितने strong, वो बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा है कि हमें ये लग रहा है ये मेजर विक्ट्री है, लेकिन ये विक्ट्री नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप टोकनिज्म यानी कि एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अगर आप विमेन को अपॉइंट कर भी लेते हो तो भी हमें ये पता है कि जो अपॉइंटेड कॉर्पोरेट में होंगे दे वुड जस्ट बी राबड़ी देवीज ज्वाइनिंग कंपनी बोर्ड्स, राइट? तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि ये सारा जो भी अभी पूरा ये चल रहा है गेम, दिस इज ऑल अ गेम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फैब्रिकेशन और लाइक अ हॉग वॉश, whereby you are trying to promote something to the public but you actually do not mean that particular thing, right? In any case, the moment women's reservation is treated as a matter of dogma, dogmas क्या होते हैं? They are unproven beliefs होते हैं आपके, या set of principles होते हैं जिसका आपके पास कोई validation नहीं होता, लेकिन उसको आप impose करते हो लोगों के ऊपर, right? तो उसको आप dogma बोलते हो।
it loses its raison d'etre, that means its mission, right? The essence of life, उसको आप मिस कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आप पे इम्पोज किया गया है, आपकी मर्जी से आपको नहीं दिया गया। मैंने बोला ऐसे करना है तो वो इम्पोज किया गया है, उसका मिशन से मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये क्यों होना है, बट क्योंकि इसका इम्पोजिशन होना है, ये आपके ऊपर लागू करना है, तो वो किया जा रहा है। Which is why all right-thinking people, including women's organization, need to see the proposed amendment in the Companies Act for what it is, a ploy. A ploy is a gimmick, it is some sort of a trick to placate. Placate means to calm down something, right? Women and distract them from their main demand for space on the political platform. Now see, look at the thread. We started by talking about or comparing the corporate और talking about कि आपका जो board room है उसमें women directors हो सकते हैं, नहीं हो सकते, जिस तरह की नॉर्वे एंड स्वीडन में है। उसके बाद हमने पूरा बताया कि अगर होंगे भी तो वो सिर्फ एक फेस होगा, बट दे आर गोइंग टू बी डिवॉइड ऑफ पावर्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी द रियल विमेन हु वुड वांट टू रन एट अ सीईओ लेवल, राइट? वो सब एक मेयर फसाड है, एक गिमिक है, एक फॉर्मेलिटी है। अब उससे जो है हम एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेके आ गए हैं, सो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट इन द पैसेज। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज़ वाई ऑल राइट थिंकिंग पीपल, जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्यों रिजर्वेशन को इतना इम्पोज कर रही है, दैट women should get certain reservations in certain jobs, including women's organization, need to see the proposed amendment in the Companies Act. ये proposed amendment in Company Act कुछ नहीं है, ये सिर्फ women को calm down करने का एक तरीका है एंड उनको distract करने का तरीका है, because they know that if you provide them with some sort of a distraction, they would probably not ask for a lot of space on the political platform. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विमेन को इन बातों में उलझा जाओ, राइट? कि कंपनी का जो आपका इन्होंने बोला है, जो कंपनीज एक्ट है, अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट, इफ विमेन आर एनग्रॉस्ड इन टॉपिक्स लाइक दीज, they would never question their presence on the political platform, because they would think कि कहीं ना कहीं और कुछ नहीं तो कम से कम कॉरपोरेट में तो विमेन को जो है पैरिटी मिल रही है। तो उनको इस चीज़ से डिविएट करने के लिए ये सारा जो है चीज़ करा जा रहा है, एंड दिस इज वॉट विमेन एंड द ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट अंडरस्टैंड, विमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस। क्वाइट पॉसिबली वी हैव टेकन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एज अ रोल मॉडल, but given the huge gap between the position of women in India and these countries, it is like comparing chalk and cheese. You can't be comparing chalk and cheese, they are two distinct things. So that is what you're trying to do. You're trying to ape something that is happening in Norway, something that is happening in Sweden, or for that matter in majority of Scandinavian nations. But do you even match with them as far as the contribution of women, their roles, and basically incorporating them into mainstream corporate is there? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप तो सब कुछ पेन एंड पेपर पे कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पिरिट ज़ीरो है, आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो। बट वॉट आर दोज पीपल डूइंग देयर? दे आर डूइंग इट जेन्युइनली बिकॉज दे वॉन्ट women workforce to be a part of the boardroom, because they know that they are capable individuals. लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? सिर्फ एक टोकन के, एक फॉर्मेलिटी के नज़रिए से जो है हर एक चीज़ को देखा जा रहा है। The case for women's reservation, moreover, rests on two premises. One, that women are disadvantaged by the mere fact of their gender, or two, that women bring in critical extra dimension, a variety of richness of perspective that would be lost without them. अब हम किस चीज़ की बात करें कि reservation जो है ये दो premises पे based है, यानी कि ये दो facts पे based है। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि व्हेन अ वुमन इज़ कमिंग इनटू अ वर्कफोर्स, उसका जो डायरेक्शन होता है, उसका जो मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस होते हैं, उसका किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट टेंजेंट से सोचती है, राइट? दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। एंड इफ women आर नॉट देयर एज अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, दिस न्यू डायमेंशन, दिस न्यू एज, दिस एक्स्ट्रा डायमेंशन और richness of perspective would not be there. Viewed against this yardstick. Now there is again probably a second opinion which is viewing everything against this yardstick. Reserving seats for women on company boards cannot be compared with reservation in parliament.
So just because women are very, or they have a very multi-dimensional kind of a perspective, that doesn't mean that if you're reserving seats for them in companies, you should also be reserving seats for them in the parliament. Because even if the first premise is fulfilled, so let us say that we've given them seats, we've reserved seats for them because we know that they have got a very rich perspective and we don't want to lose that perspective. हमें वुमन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचनी, तो हमने उनको सीट दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पार्लियामेंट में भी सीट मिलेगा, राइट? एंड अगर हम ये मान लेते हैं कि हमने चलो पहला प्रेमिस जो है वो सोच लिया, मेल बॉन्डिंग इज एज मच अ फैक्ट ऑफ लाइफ इन कॉर्पोरेट एज इन पॉलिटिकल सर्कल्स, there is a crucial difference when we look at the second premise. अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, अपने जो आपके मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बॉन्ड करना, उनके साथ जेल करना पार्लियामेंट में वर्सेस एक कंपनी में, ये दोनों पर्सपेक्टिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि प्रॉबली इन द कंपनी यू आर वर्किंग एज a single unit, but in the parliament you may have a difference of opinion. So that is the second important point that they are stating, that if you've decided to reserve a couple of seats for women, let us say in the corporate or in any company, that doesn't mean that that same thing applies to the parliament also, because of one differentiating factor, and that one differentiating factor is how well do you gel with your counterparts, your male counterparts in a company versus your male counterparts in the parliament. The duty of an MP is to his or her constituency. It is an acknowledged fact that the interests and priorities of men and women differ a great deal, especially when it comes to matters relating to health, children's education, prohibitions, smoking, and so on. There is therefore a sound case for more women in parliament, as women are more likely than men to keep these interests in mind while framing government policies. Now this is giving us, or these 3-4 lines are giving us a new perspective by advocating a fact as to why women should have a couple of seats that are reserved for them in the parliament. Primarily because when you talk about men, they do not deal with matters related to health, children's education, prohibition, smoking, and so on with a lot of deliberation. Whereas when you talk about women, they may want to deal with these topics with a very, very deliberative perspective. And they're going to be good in the formulation of the government policies. In contrast, the duty of a director on board of a company is to the shareholders of the company. अब ये लास्ट पैराग्राफ में पैरेलल ड्रॉ कर रहा है कि अगर एक एमपी है तो उसका काम क्या है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ध्यान में रखना. अगर कोई एक आपका बोर्ड में है, यानी कि कोई आपका डायरेक्टर है ऑन बोर्ड, उसका काम क्या है? किसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना? अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को. तो दोनों जो चीज़ें हैं फंडामेंटली बहुत ज़्यादा डाइवर्स एंड डिफरेंट है. एंड हियर इज द फेसाइल, हियर इट इज़ फेसाइल. फेसाइल का मतलब होता है जो चीज़ सुपरफिशियल है, जिसमें इतनी डेप्थ नहीं है. एंड हियर इट इज़ फेसाइल टू आर्ग्यू दैट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आर इन एनी वे कंडीशनड बाय देयर जेंडर. राइट? अब आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो आपका शेयर होल्डर मैन है या आपका शेयर होल्डर एक वुमन है. राइट? दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर इंटरेस्ट्स. फाइन. बट अगर हम फॉर्मर केस में देखें, अगर एक वुमन इन इश्यूज़ के साथ डील कर रही है उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा. लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, एक डायरेक्टर चाहे सामने मेल हो या फीमेल हो, वो अपना स्टैंड अपने शेयर होल्डर्स के हिसाब से ही रखता है, नॉट ऑन द बेसिस एज टू विच जेंडर इज गोइंग टू हैव विच काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव. They are not, as shareholders, they are only interested in maximizing profits. मेरे को ये नहीं देखना है कि आप एक वुमन के हिसाब से क्या पर्सपेक्टिव ला रहे हो या आप एक मैन के हिसाब से क्या पर्सपेक्टिव ला रहे हो. मुझे ये देखना है किस में मेरे प्रॉफिट बन रहे हैं, किस में मेरे कंपनी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है. बाकी चीज़ों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. If one takes a larger perspective of stakeholders rather than shareholders, then women directors may prove more gender sensitive, बट वन कैन नॉट जनरलाइज. अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें कि शेयर होल्डर से ज़्यादा हम ये बोलें कि किस किस के स्टेक्स लगे हमारी कंपनी में, तो येस वुमेन मेक अ बेटर लीड. बट अगेन इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. द चॉइस ऑफ डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ अ कंपनी मस्ट देयरफॉर बी डिसाइडेड ऑन मेरिट एंड कंपीटेंस अलोन. जेंडर हैज़ नो बेयरिंग ऑन आइदर. नाउ
टॉपिक वॉज वेरी रिलेटेबल. इट इज़ अ पर्टिकुलर टॉपिक जो हम रोज़ सुनते हैं कि विमेन की पैरिटी के लिए उनको रिजर्वेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बट अगर आप पैसेज का एक थ्रेड देखो, पहले हम कंपेयर कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, कंट्री के साथ, फिर हमने बोला है कि इंडिया में जो है हमें लगता है कि एक मेजर विक्ट्री होगी, बट दिस इज़ नॉट अ विक्ट्री, दिस इज़ अ मेयर हॉग वॉश, राइट. उसके बाद हमने यहाँ पे आपको 2-3 पैराग्राफ्स में वी आर डिस्कसिंग दिस कि जब कोई चीज़ को आप दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती लागू करते हो, इम्पोज करते हो एज अ डॉगमा, तो उसका जो एक बेसिक इसेंस है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. एंड समवेयर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है. 2-3 कारणों से कर रही है. पहला कि उसने ये दिखाना है कि हमने एक टोकन कर दिया है जेंडर बायसेस के अगेंस्ट कि वी हैव डिसाइडेड दैट विमेन आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट a decent number of the workforce, right? Specifically when you are talking about the hierarchy in the companies. दूसरा चीज उसने क्या बोला है, विमेन को काम डाउन करने के लिए दैट वी आर वर्किंग फॉर योर बेनिफिट, और ताकि वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में अपने लिए ज़्यादा जो है चीज़ें ना मांगे कि मेरे को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में भी पैरिटी चाहिए. इट इज़ बेटर कि आप कहीं ना कहीं ये शो करो दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द विमेन सो दैट दे गेट डिस्ट्रैक्टेड फॉर अ लिटिल वाइल. फिर उसके बाद हमारे को ये बोला है कि विमेन की रिजर्वेशन को अगर हम 2 पर्सपेक्टिव से देखें, वो 2 पर्सपेक्टिव्स हमारे क्या हैं. सबसे पहले ये कि इनको कंसिडर किया जाता है एज द डिसएडवांटेज जेंडर, तो कहीं ना कहीं अगर ये सामने आते हैं तो पैरिटी होगी. एंड दूसरी बात, इनका पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है. अगर इनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखी जाएँ सो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन अ बेटर वे, राइट. आगे उसने क्या बोला है आपको, लास्ट पैराग्राफ में उसने क्या बोला है कि just because you've decided to reserve a couple of seats for them in the companies or in the boardroom doesn't mean that the same rule would apply in the parliament. क्योंकि बोर्डरूम में आप अपने अपना इंटरेस्ट चाहिए आपको या सामने वाले शेयर होल्डर का, लेकिन जब आप एमपी के बारे में बात करते हो तो यू हैव टू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू हैव टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर परस्पेक्टिव. एंड समवेयर द पैसेज इज अगेन क्लोजिंग in a very ambiguous kind of a note, rather a very affirmative kind of a note, where they have said that gender should not be a prerequisite for selecting the director. It is not something that is grade sensitive. Anyone who is capable, be it be a man or be it be a woman, should be appointed as the director. So if we look at the thread, if we look at the loop, हमें पता ही नहीं है अभी कि फेवर में है या अगेंस्ट है या एम्बिगुअस है या मिक्स्ड रिस्पॉन्स है ऑथर का. Right? I hope this particular passage gave you some idea as to how you're supposed to understand the central idea of every paragraph and understand. अच्छा, अगर मैं कीवर्ड देख के या क्वेश्चन देख के टेक्स्ट में आऊँगी तो मेरा लास्ट पैराग्राफ में तो उसने पूरा ही गेम पलट दिया. बीच में भी वो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि ये मेजर विक्ट्री है, बट ये एक्चुअली में विक्ट्री नहीं है. So that is why it is recommended to skim through the passage generously if at all you decide to choose that passage to be attempted in the exam. Right? Now let us look at the questions. अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जहां पे हमारे को बोला गया है which can be the suitable title of the above passage. Whenever, I think I discussed it in one of the sessions earlier also, whenever you are supposed to choose a title, the title is going to do justice to the whole of the passage, not just to one paragraph or one idea discussed by the author. Now you can quickly go through the options. एक एक करके नेगेट करते हैं. ऑप्शन नंबर डी बोलता है डिवाइडेड नोशन ऑन विमेन्स इशू. यहाँ पे विमेन के कोई इशू नहीं डिस्कस किए हैं. विमेन इशू का एक इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वेयर बाय वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन. तो ये इशू जो है ये एक बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को तो हमने कंसिडर करना ही नहीं है. विमेन प्रोपोजिशन, सॉरी, वेलकम प्रोपोजिशन फॉर विमेन. अगर इतना ही वेलकमिंग होता तो वो कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करता, जहां पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक मेयर आपका हॉग वॉश है, राइट. एंड देन समवेयर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट रबड़ी देवीज हु आर गोइंग टू जॉइन द
कंपनी बोर्ड्स, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं चॉक एंड चीज से, तो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा वेलकम्ड है. एंड एट द एंड जो है हमने एक बहुत एफर्मेटिव स्टेटमेंट दिया है दैट जेंडर हैज़ नो बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ अ डायरेक्टर फॉर अ कंपनी. तो ये भी नहीं हो सकता. विमेन अलॉन्ग साइड मैन, अलॉन्ग साइड मैन को कॉरपोरेट के लिए तो थोड़ा बहुत फेवरेबली बोला गया है, लेकिन पार्लियामेंट में उसको कहीं पे भी इतना ज़्यादा ऑथर ने एमिकेबली रिजॉल्व या एक्सेप्ट करने की बात नहीं की है. सो ये भी नहीं है. विमेन ऑन बोर्ड, ही इज आस्किंग यू क्वेश्चंस, नॉट दिस वे. एंड वाई नॉट दिस वे कि आप टोकनिज्म कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपने उनको ओब्लाइज करना है बाय जस्ट हैविंग देम ऑन बोर्ड, बट यू डोंट वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम लेट अस से वर्किंग और टेकिंग डिसीजंस. एंड देन समवेयर यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि हमने ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक डी टूर देना है किस चीज़ का, कि विमेन जो है अपने पार्लियामेंट के रिजर्वेशन से डॉज होके कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करें. सो दिस इज़ नॉट द वे. एंड कहीं ना कहीं एंड में भी उसने ये बोला है कि जेंडर हैज़ नो बेयरिंग ऑन हु शुड बी द डायरेक्टर. इफ़ विमेन आर एफिशिएंट, they should be the directors. If men are efficient, they should be the directors, right? That is how he is closing the passage. So the correct answer is going to be option number 2. Which of the following is the author's main argument in the passage? जब भी हमने मेन आर्ग्यूमेंट चूज करना होता है, हम ऐसे आंसर चॉइस को चूज करते हैं जो कि काफी ब्रॉड ओवरव्यू यानी कि बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव को चूज करता है, ये सोचता है. ए बोलता है दैट द रेगुलेशन is a mere ploy to appease women, that is to calm down women and distract them from their main demand for space on the political platform. This is just one aspect. It is not the whole argument. पूरा पैसेज सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के आसपास थोड़ी ना घूम रहा है. पूरा जो आपका पैसेज है वो किस चीज़ के आसपास घूम रहा है? जेंडर के बारे में घूम रहा है कि वेदर विमेन शुड बी गिवन रिजर्वेशंस, वाई नॉट, व्हाट आर द प्रेमिसेस, व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ इट, उसके आसपास घूम रहा है. एंड कंपनी से रिलेटेड दैट द रेगुलेशन विल हेल्प विमेन गेट देयर राइटफुल ड्यूज. ये कहीं पे भी नहीं बोला है दैट इट इज गोइंग टू हेल्प विमेन, क्योंकि क्लियरली बोला गया है कि वो क्या है, सिर्फ एक हॉग वॉश है. हॉग वॉश बोलो, आई वॉश बोलो, फसाड बोलो, राइट, कि वो सिर्फ एक प्लॉय है, एक ट्रिकरी है, एक चालाकी है. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. दैट mere symbolic effort as far as women's place on the board is concerned will not work in the long run. This makes some sort of a sense. We can consider it as an option that gender should not be made a criteria for election of women on company's board, which is going to be the correct answer. सी अगर हम देखें, mere symbolic effort as far as women's place on boards is concerned will not work in the long run. यहाँ तक तो करेक्ट है अगर हम बोले विल नॉट वर्क, लेकिन इन द लॉन्ग रन की उसने कहीं पे भी बात नहीं की. उसने ये नहीं बोला कि अभी रख लो, 10 साल में ये चीज़ नहीं चलेगी, 4 साल में ये चीज़ नहीं चलेगी, 2 साल में ये चीज़ नहीं चलेगी. उसने क्लियरली क्या चीज़ हमारे को बोली है कि विमेन को सिर्फ एक डॉगमा, एक इम्पोजिशन के चक्कर में, या विमेन को सिर्फ इसीलिए उसमें रखना कि ये एक डिसएडवांटेज ग्रुप है, या विमेन को सिर्फ इसीलिए वो चीज़ रखना कि भाई हमने जो है एक कहीं ना कहीं प्रपोज अमेंडमेंट को पास करना है एंड हैविंग देम ऑन बोर्ड, ये नहीं होना चाहिए. दे शुड बी केप्ट देयर जस्ट बिकॉज दे आर केपेबल इंडिविजुअल्स एंड दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड नॉट बिकॉज दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स, और प्रॉबेबली not just by the virtue of their gender, but because they are going to help in the smooth functioning of the company. तो उनकी capabilities के हिसाब से रखो, जेंडर के हिसाब से नहीं, क्योंकि जब आप सिर्फ जेंडर के हिसाब से रखते हो तो उन्होंने आपको रबड़ी देवी का जो है एग्जाम्पल दिया है कि वैसे लोग ही जो हैं फिर आपके कॉरपोरेट में या आपके डायरेक्टर्स बनते हैं, राइट, इन द कंपनी बोर्ड्स, एंड नॉट एक्चुअल people who are capable. So gender should not be made a criteria for election of women on company boards. Their capability should be the criteria. So option number D is going to be the correct answer. Now, if you come to question number 3, analogy का मतलब क्या होता है? Similarity. The analogy that if there is reservation for women in parliament,
द सेम शुड बी द केस इन द बोर्ड्स। तो इससे क्या मिलती जुलती हमारी कंडीशन होगी, क्या मिलता जुलता हमारा सिचुएशन होगा। अब हमारे को क्या बोला गया है, द एनोलॉजी दैट इफ देयर इज रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट द सेम शुड बी इन द केस, सॉरी द सेम शुड बी, the same should be the case. Question number 3 says the analogy that if there is reservation for women in parliament, the same should be the case in the boards. इससे मिलती जुलती एनोलॉजी क्या है। अब हमारे को पैसेज में क्या बोला गया है कि अगर आप विमेन को रिजर्वेशन दे रहे हो बोर्ड में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है आपका पार्लियामेंट में भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के जो आप बोलो टारगेट पॉपुलेशन जिसके साथ उन्होंने डील करना है और जिनके लिए काम करना है वो डिफरेंट है। अगर आप एक एमपी के बारे में बात करें, उसका टारगेट क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखना। लेकिन अगर आप एक बोर्ड रूम में बैठे डायरेक्टर की बात करो, उसका क्या है, उसे सिर्फ अपने शेयर होल्डर को देखना है, ठीक, कि उसको मैंने कैसे बेनिफिट करना है। अब जो आपका एमपी है उसने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी इश्यूज हैं या जो भी चीज़ें वो पास कराना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, दे हैव टू फोकस ऑन अ वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन। हियर दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट दे आर नॉट हियर टू रेंडर एनीथिंग charitably or any kind of a service or anything that is you can probably say very gratuitous, but they are here only to make profits. तो दोनों के टारगेट पॉपुलेशन, दोनों का एजेंडा, दोनों का सोच, दोनों का असम्पशन जिसमें उनकी थ्योरीज बेस्ड हैं वो अलग अलग हैं, तो आप उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। फैलेसी दैट डज नॉट होल्ड लॉजिकली मेक सम सेंस, कि दोनों को कंपेयर करना लॉजिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों के टारगेट पॉपुलेशन एंड ग्रुप्स डिफरेंट है। इज एप्ट बिकॉज इन बोथ केसेस वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसने कैटेगोरिकली हमारे को एक चीज़ बोली है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो ठीक है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन दोनों ने दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ एंड डिफरेंट काउंटर पार्ट्स के साथ एंगेज करना है, जिसमें दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट हो सकता है। Does not hold because women in politics and women in business play different roles. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये पॉइंट नंबर 1 का ही जो है आपको फॉलो अप मिलेगा, वेयर बाय वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस। जब अलग अलग लोगों के साथ आपने काम करना है, टारगेट पॉपुलेशन ही आपकी अलग है, सो इट इज़ लाइक यू आर ट्राइंग टू कंपेयर, जो कि उसने बोला, और कंट्रीज के साथ कंपेयर करना या पॉलिटिकल सर्कल्स के साथ कंपेयर करना इज लाइक चॉक एंड चीज़। So the correct answer for question number 3 is going to be 1 and 3, and this is something that is totally out of scope. It is not apt. उसने कहीं पे बोला ही नहीं है, ये apt analogy है। Gender equality through law according to the author. अब author के perspective से हमने देखना है कि जो gender equality है वो क्या है। Is the only way as far as women getting equal rights are concerned? Only way तो उसने बोला ही नहीं है। हम तो सिर्फ एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और वो सिचुएशन किससे रिलेटेड है? दैट सिचुएशन इज रिलेटेड टू बेसिकली टॉकिंग अबाउट द विमेन गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन एट द सीईओ और द डायरेक्टर लेवल इन अ कंपनी। डज नॉट वर्क बिकॉज विमेन आर रबर स्टैम्प्स एनीवे। रबर स्टैम्प का मतलब क्या है? व्हाई इज ही सेइंग दैट जेंडर इक्वालिटी थ्रू लॉ अकॉर्डिंग टू द ऑथर? तो जेंडर स्टैम्प किस वे में बोला है, सॉरी रबर स्टैम्प किस वे में बोला है कि किसी काम की नहीं है, दे आर जस्ट रबर स्टैम्प्स, राइट, सिर्फ ऑन पेपर है बट वैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इज एन इम्पोजिशन एंड नथिंग मोर देन मेयर टोकनिज्म। ये बोला गया है जेंडर इक्वालिटी इसलिए नहीं काम करेगी क्योंकि विमेन रबर स्टैम्प्स है। ये उसने सिर्फ एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया था राबड़ी देवी का, उसकी मेजर आर्ग्यूमेंट ये नहीं बोल रही थी। उसकी मेजर आर्ग्यूमेंट क्या बोल रही थी कि आपकी सोच ही फ्लॉड है। किस बारे में फ्लॉड है? कि भाई क्योंकि हमने सिर्फ विमेन को वर्कफोर्स में लाना है तो इसीलिए कुछ भी करके बस उनको ले आओ, वो खुश हो जाएंगे थोड़ा सा, उनको लगेगा दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। एंड समवेयर वी हैव आल्सो बीन टोल्ड विमेन्स रिजर्वेशन, जब जब उसको आप एक डॉगमा की तरह, एक इम्पोजिशन की तरह जबरदस्ती लोगों पर लागू करने का काम करोगे, वो अपना एक जो मिशन है उसका रेजो देत्र है
वो एकदम वो उसको मिस आउट कर देगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज वी बीन टोल्ड ये सिर्फ एक टोकनिज्म का काम कर रहे हैं. Will bring more sensitivity and ethical values to the parliament and company boards. This is too far-fetched. We have not been told कि उसके जो है positive implications क्या हैं कि लोग sensitive हो जाएंगे towards having women as a workforce. Nothing so far has been discussed in the passage. ये बहुत easy question था. The difference between Western companies and Indian companies, हमारे को 2 differences बताए गए हैं. पहली चीज़ तो ये बताई गई है they want women to be a part of their workforce because they know that women आर केपेबल. एंड दूसरी चीज़ जो वो रखते हैं कि अगर आप उनकी केपेबिलिटी के हिसाब से उनको नहीं रखोगे तो लेजिस्लेशन जो है दैट इज गोइंग टू टेक इट्स टोल ऑन यू, राइट. इन इंडियन कंपनीज देर आर स्टेक होल्डर्स, इन वेस्टर्न कंपनीज देर आर शेयर होल्डर्स. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, राइट. Abroad, women present on boards because they deserve to be there, not because of legislation. अगर आपको याद है यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था that companies have simply been told in the Western nations, right, that women directors must constitute a specified percentage of their board within a stipulated time frame, failing to which government will bring legislation to this effect. ये चीज़ बोली गई है. दूसरी चीज़ उसने क्या बोला है जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन नेशंस की उसने बात की थी, उसने कैटेगोरिकली हमारे को किस चीज़ के बारे में बोला था दैट वेस्ट में जो है दे आर नॉट देयर जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर जेंडर बट बिकॉज शेयर होल्डर्स थिंक दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. एंड इंडिया में क्या है, सिर्फ हमें जेंडर इक्वालिटी का एक ड्रामा दिखाना है लोगों के आगे तो हमने उनको जो है अपने बोर्ड रूम में रखना है. सो दोनों का पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली डिफरेंट है, राइट. Will bring in Indian companies there are stakeholders, in Western companies there are shareholders. We are talking about their perspectives and not the ones who are actually running the companies or responsible for that. Abroad, women present on the boardrooms, on boards because they deserve to be there and not because of legislation. Makes a lot of sense. Western companies have more CEO material women compared to Indian companies. हमारे को सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि CEO लेवल की विमेन जो है वो कम है, लेकिन कहीं पे भी दोनों वेस्टर्न एंड इंडियन नेशंस का पैरेलल नहीं ड्रॉ किया गया है. सो दिस ऑल्सो गोज आउट. द गवर्नमेंट्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आर मोर सीरियस अबाउट पासिंग विमेन सेंसिटिव लेजिस्लेशन. उन्होंने तो ऐसा कुछ पास ही नहीं किया है. उन्होंने तो ये बोला है कि आप उनको कॉन्स्टिट्यूट करवाइए, अगर आप उनका एक डिसेंट परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट नहीं कराएंगे तो लेजिस्लेशन अपने हिसाब से जो है उस चीज़ को डील करेगा, राइट. सो अगेन वी आर नॉट ड्रॉइंग अ पैरेलल ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी women present on boards because they deserve to be there by the virtue of their hard work and not just gender. So therefore the correct answer is option number B. Question number 6. What explains the discrepancy, that is the shortcoming, in the author's statement that despite India's worst records of women's right abuse, it can still join countries like Sweden and Norway. एक तरफ से तो आप बोल रहे हो कि इंडिया में जो है वुमेन अब्यूज़ सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो compete कर सकता है विद नॉर्वे एंड स्वीडन. तो इसमें सबसे बड़ा लेकुना, सबसे बड़ा एरर, सबसे बड़ा गलती क्या है? ए बोलता है बाय अडॉप्टिंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रोल मॉडल इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग ऑफ विमेन. वी आर, उसका तो पैरेलल ही कहीं पे भी ड्रॉ नहीं हो रहा है, राइट क्योंकि ऊपर हमारे को किस चीज़ के लिए बोला गया है? वी हैव जस्ट बीन टोल्ड अबाउट द फैक्ट कि आप विमेन को एज अ प्लॉय सिर्फ एक ट्रिक के लिए जो है उसको आप रखने की कोशिश कर रहे हो. And unlike the reservation of seats in the parliament, then India country with one of the worst records of women's right abuse, will join Sweden and Norway as the only country to mandate the presence of women in corporate boardrooms. तो पहले आप क्यों बता रहे हो कि अगर इतना ज़्यादा अब्यूज़ है तो वो इतना ज़्यादा पैरेलली कैसे आगे जाके बोर्डरूम्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं? तो बाय अडॉप्टिंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ये तो कहीं बोला ही नहीं है कि उनके रोल मॉडल को आप जो है अडॉप्ट करें. By acknowledging the interest and priorities of women in matters related to health, family, इसका कोई मेंशन नहीं है. By recruiting women as the director on board of the company on the basis of merit and competence,
हमें तो क्लियरली बताया गया मेरिट एंड कंपीटेंस के बेसिस पे तो वेस्टर्न नेशंस करते हैं, इंडिया तो करता ही नहीं है। इंडिया क्या बोल रहा है, हमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए ताकि विमेन जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या एक पॉलिटिकल एरिना में ना मांगे, राइट। बाय मैंडेटिंग इन लॉ द प्रेजेंस ऑफ विमेन इन कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स। तो ये जो है सबसे बड़ा डिस्क्रिपेंसी है। एक तरफ से आप बोल रहे हो अब्यूज विमेन का बहुत ज़्यादा है, तो अगर विमेन का अब्यूज बहुत ज़्यादा था तो लॉ तब क्या कर रहा था, और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो कि अगर आपने विमेन को जो है सबसे ज़्यादा बोर्ड रूम्स में बिठाना है तो आपको अपने लॉ स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। तो बात वही, अगर लॉज इतने ही स्ट्रिक्ट हैं तो फिर अब्यूज एट द फर्स्ट प्लेस क्यों हुआ, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट डिस्क्रिपेंसी दैट इज देयर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये 3-4 लाइनें पढ़ें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है, बट इन केस आर MPs डू मीन इंडिपेंडेंट, do mean a business. After all, reserving seats for women on company boards does not hurt their interest directly, unlike reservation seats in parliament. Then India, a country with one of the worst records of women rights abuse, will join Sweden. Women को right है, उसका abuse हुआ है, तब law कहाँ था? अब आप बोल रहे हो कि law बना दो ताकि women जो हैं workforce में चले जाएं, तो तब भी तो law आपका abuse हो ही सकता है। So ये सबसे बड़ी discrepancy है जो उसकी argument में है, right? So again, looking at the perspective of, from the perspective of the questions and the passage, it was not a very difficult kind of a passage, but yes, a passage which required you to understand the central idea, because the tone of the author and the thought process, including the conclusion, which was a total game changer. So everything has been quite wavering from the perspective of the author, right? Now the only way to attempt such passages is that if you have a daily practice whereby you are practicing passages from different domains, so that you are able to draw a parallel with the line of thought of the author and with what you are trying to understand, right? I hope this session was engaging and a little insightful for all of you. I'll catch up with you in the next session. Thank you.